Recording. Alright. Welcome to day 2 of Pathfinder batch. A lot of people are not here today with us, but okay, never mind. आपल्याला एक second. Yeah. Okay. Today we are going to talk about another aspect of creativity and a pretty interesting aspect about art. की art काय असतं. मी सगळ्यांना unmute वर ठेवलेलं आहे. So either you can make your responses on chat or तुम्ही हे पण बोलू शकता. Sir, these are live session. Are these live sessions also on YouTube? No. I record this here and then I upload it on YouTube. मी ती लिंक पाठवली ना, ती लिंक from that you can go forward. Okay, alright. Can you tell me, आपण आधी 2-3 aspects बघूया आणि then we'll combine and then we'll come up with the exercise as always. Okay. First, why do we create art? हम लोग जो कला ये करते हैं वो क्यों करते हो? Whatever art हो, sketch करते हो, drawing करते हो, painting करते हो, क्यों करते हो? Chat पे बता दो. To relax or express themselves. Yeah, okay, that's true. Actually, it's a one word. See, we create art to express ourselves, to express our emotions, achievement, happiness. Uh, yeah, that's also right. Sometimes we uh, express sadness also. Not every art is happy. Not some art are sad, some arts are angry. There is resistance art. There is erotic art is also there. So if you think about it, आपल्याकडे it is satisfying. Okay, all right. I can take that. Yes, it is satisfying, and it also helps you to relax. That's also a funda. But one of the most important एक सेकंड होल्ड कर. Sorry. Yeah. So we create art to express ourselves. आपल्या मनात जे काही चाललेलं असतं, whatever our thought process is, ती आपण एक्सप्रेस करायला हे करतो. बरोबर आहे. If there is a lot of if there is something going on in my mind, correct? For me personally, I need to create something on a daily basis. So maybe I'll write, maybe I'll paint, maybe I'll take a photograph, and I try to find my expression to that particular emotion. Okay. A lot of times I create art which is very offensive. I create a lot of offensive art which I generally don't put out anywhere. But it is very important to me personally because it helps me express myself. Correct. So, and whether you create happiness, sadness, whatever type of you are creating, you are trying to express yourself. Even if you are doing a sketch of, let's say, Aishwarya Rai, so you are expressing your affection or love towards Aishwarya Rai. Or if you are doing, let's say, a caricature of Salman Khan, so you are trying to express your views on that particular person or that particular topic, etc. So let's understand one thing: the art is for expression. Second, art is something that can transcend time. What do I mean by that? Can you tell me what might be the first artwork ever produced in human history? ऐसा कुछ क्या तुम इस क्या दुनिया में सबसे पहला पेंटिंग कौन सा होगा? वेरी सिंपल. तुमने 4th स्टँडर्ड में सीखा है. नॉलेज बेस स्टोन पेंटिंग असतात ते. काय वॉल पेंटिंग? नाही, ते स्टोन वर करतात, करायचे ते एन्शियंट टाइम्स मध्ये. केव पेंटिंग्स एक होता है. केव पेंटिंग्स. किधर है इंडिया में फेमस केव पेंटिंग्स कहाँ पे दिखाई देता है? एलोरा केव्स. अच्छा, इट्स ट्रू. बट सबसे पुराना कहाँ पे है? भीमबेटका.
भीमबेटका. ओके, एक सेकंड ना, फोन कर. आई नीड टू सेंड दिस. just hold on for a second. Yeah. So art also captures what is happening around us. I'll tell you how. Uh, how do we understand, जसं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन तुम्हें पता है, करेक्ट? यस. हड़प्पा मोहनजोदड़ो. अभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में बताने के लिए हमारे पास राइटिंग तो नहीं है. जैसे अगर तुम्हें मान लो ये पता करना है कि 1980s में कैसा एनवायरनमेंट था ओवरऑल तुम्हारे अगल बगल में, तो यू माइट आस्क योर पेरेंट्स, करेक्ट? अगर 1950s में कैसा था ये अगर तुम्हें पता करना है, यू माइट आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स. लेकिन 1900 में कैसा था ये पता करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं. आइदर यू रीड बुक्स उस बारे में, उस जगह पे जो था उस टाइम का, या फिर यू लुक एट द आर्ट व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. इसका सबसे फेमस सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड, अ लॉट ऑफ न्यू आर्ट मूवमेंट्स फॉलोड अप. ठीक है, बिकॉज इफ एन आर्टिस्ट इज डिस्टर्ब ही क्रिएट समथिंग न्यू काइंड ऑफ आर्ट. ये तुम रेनेसांस में भी देख सकते हो. व्हेन social situations change, when the mentality of people changes, it is reflected in art. Let's go back. अगर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में देखें तो देर आर टू एग्जाम्पल. फर्स्ट इज आर्किटेक्चर एंड सेकेंड इज योर आर्ट. तो उनके जो घर थे, ठीक है, वॉट एवर घर, जो मिट्टी के घर बनाए थे या ब्रिक से घर बनाए थे, फ्रॉम दैट वी कैन फिगर आउट कि हाँ उनके घर ऐसे हुआ कर सकते थे, करेक्ट? या फिर उनका सोशल सिस्टम भी वी कैन अंडरस्टैंड. अगर तुम हड़प्पा मोहनजोदड़ो का प्लानिंग देखोगे तो वहां पे देयर वर टू सिटीज. फर्स्ट सिटी वाज जो अपर क्लास होता है, जो एलिट्स होते हैं, उनके लिए एक सिटी था जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे, और एक छोटा सिटी था जहाँ पे नीचे तबके के लोग रहते थे, करेक्ट? अगर तुम उनका आर्ट देखोगे तो उनके आर्ट से भी हमें पता चलता है कि वो किस बारे में या किस तरह से सोचते थे, करेक्ट? अगर हम केव पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में हम बात करें, अगर तुमने देखा होगा, अगर इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट इट आफ्टर दिस सेशन, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों का सोशल लाइफ कैसा था. उसमें देर आर पेंटिंग्स जहाँ पे लोग हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है. सो देर आर पीपल जो भाले लेके किसी हॉर्स के पीछे या किसी के भी पीछे जा रहे हैं. तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उनका उस टाइम पे सोशल लाइफ कैसा था. देन देर आर पेंटिंग्स जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ they are dancing, so we get to know about their culture also, correct? So काय okay. जो आर्ट वाला जो फंडा है ये ट्रांसेंड करता है टाइम को भी, कि तुम आगे जाके मतलब इफ यू वांट टू शो कि सी कि 200 साल पहले क्या होता था दुनिया में, तुम राइटिंग देख सकते हो या फिर तुम उसके आर्ट के बारे में देख सकते हो कि उस टाइम पे सोशल लाइफ में क्या चलता था, उस टाइम पे सोशल कंडीशनिंग क्या था ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट हैपेंस इवन आफ्टर योर डेथ. फॉर एग्जांपल मान लो 10 साल बाद 20 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे वगैरह होंगे, तुम्हें पूछेंगे कि अरे पापा वो पैंडेमिक के टाइम पे जब कोरोना महामारी आया था तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे. तो यू माइट बी टेल कि अरे हम घर पे बैठे थे, एक सर थे हमारे रोज परेशान कर रहे थे लेक्चर लेके हमको. दैट यू कैन टेल टू योर किड्स और इवन ग्रैंड किड्स फॉर दैट मैटर. लेकिन 200 साल बाद जब कोई देखेगा तो वो तुम तो बात करने के लिए रहोगे ना उस टाइम पे, बिकॉज यू आर नॉट इमॉर्टल ऑब्वियसली. ना मैं रहूंगा. शायद अगर 500 साल बाद किसी को पता करना होगा कि बाबा ओके कैसा था, तो जैसे मान लो तुमने तुम्हारे बेटे को बताया 10 चीजें, ठीक है, वो उनके आगे की जनरेशन को बताएंगे 5 चीजें. ऐसा करते करते कहीं ना कहीं चीजें डिसॉल्व आउट हो जाएंगी. सो हाउ डू यू सेंड योर मैसेज अक्रॉस, मतलब जनरेशंस के थ्रू, इफ यू वांट टू ट्रांसेंड टाइम, तो तुम कैसे, व्हाट इज वन वे इज आर्ट कि तुम ये फिगर आउट करो कि if whatever is happening around you, if you try to put that into an artwork and if you preserve it properly,
मे बी कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50, 100, 1000 साल बाद देख के कोई शायद अंदाजा लगा सकता है कि उस टाइम पे लाइफ में क्या हो रहा था. ओके, सो टुडेज क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन. जैसे जो भीमबेटका में जो केव पेंटिंग्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या वर्ड्स में लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं, वो पेंटिंग्स के द्वारा किया है ना कि हाँ ठीक है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग. हम पेंटिंग्स देखेंगे थोड़ी देर में. तो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि तुम्हें जो कहना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वो तुम्हें विजुअल्स के द्वारा कहना होता है. किस तरह से कहोगे वो तुम्हारा, दैट इज योर अप टू यू. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें तुम्हारा मैसेज अक्रॉस पहुंचाना है. So we are going to have a creative exercise today, which is based on visual communication. I'm going to show you some examples of cave paintings. We'll try to figure out कि क्या क्या उसमें हो सकता है. कहाँ गए तुम लोग? So let's have a look at this painting. Can you see this painting? ये वाला? Yeah. Okay. Now can you tell me कि इसमें जब जो जितना भी ये पुराना केव पेंटिंग है, इसमें से क्या पता चल रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर? वो ये क्या है? व्हाट आर दीस? एलिफेंट, मैमथ्स. ओके, क्योंकि उस टाइम में मैमथ हुआ करते थे. तो कैन यू डिस्क्राइब दिस सीन टू मी? they are hunting the mammoth. They are hunting the mammoth. What else can you tell me from this particular painting? इसमें और क्या तुम्हें दिखता है उनके सिविलाइजेशन के बारे में? क्या उन्होंने आर देयर हॉर्सेस एज वेल? Yes. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम में जो लोग थे, उन्होंने वेरी गुड, उन्होंने हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट कर लिया था? हाँ. Yes. हाँ. क्या हम ये बोल सकते हैं उनके पास वेपन्स थे? हाँ. Yes. कौन से टाइप के वेपन्स थे? सो देयर इज बो एंड एरो, करेक्ट? हाँ. भाला भी है, तलवार भी है. बट आई ऑल्सो सी हियर समबडी इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ एलिफेंट. तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने हाथियों को भी डोमेस्टिकेट कर लिया था? हाँ. Maybe. Maybe. Okay, let's have a look at another cave painting. Maybe oh yeah, this is I think the most and the first piece of art that we have ever created. Can you tell me कि ये जो पेंटिंग किया है, अभी इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि बाबा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ शिकार हो रहा है, कुछ खा रहे हैं. तो why do you think this painting or this artwork was created? जौहर की वजह से. जौहर की वजह से? जौहर, do you mean वो वाला जौहर, पद्मावत वाला? Yes. डालेंगे 10,000 15,000 साल पुराने पेंटिंग्स हैं. Okay, I will explain. So what this is, तो मेरे हिसाब से, according to me, this painting is the urge to express themselves, is the urge to tell the people कि yes we existed. Can you understand मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि जो जिसने भी आर्टवर्क बनाया होगा या जिस भी कम्युनिटी ने आर्टवर्क बनाया होगा, उनका ये तो फंडा नहीं रहा होगा ना कि ठीक है, मतलब एक तो सबसे पहले क्यों किया होगा उन्होंने, कि मान लो सुबह वो उठे, थोड़ा शिकार वगैरह किया, एट द एंड ऑफ द रात को घर आए. अभी क्या करने का रात को? सो व्हाई वुड दे चूज टू डू दिस? व्हाई वुड दे चूज टू डू दिस? बिकॉज somewhere down the line human consciousness evolved and they figured out कि maybe we need to express ourselves in a way कि future generation को ये पता चले कि we existed somewhere down the line. This is where human lived at one point of time. और ये we don't know how ये कितना पुराना है, बट इससे हमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंटली पता चलती है कि नंबर 1, there were humans at that point of time,
Number two, they had their consciousness was developed enough to produce a kind of art which shows कि जो एक sense of self होता है वो यहाँ पे उनका काफी इवॉल्व हो चुका था. Let's have a look at some other paintings. जैसे ये वाला है. यहाँ पे what can you see? Zoom it out a little bit. So can you see this thing? ये वाला चीज? That looks like a dog to me. Correct? यहाँ पे भी एक there is a dog. There is a क्या ये बैल है? Is this a bull or a cow? It shows कि उन्होंने जो है उन्होंने उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया होगा. I also see somebody playing a musical instrument more or less here. तो म्यूजिक का भी इवॉल्व मतलब म्यूजिक भी उस टाइम पे इवॉल्व हो चुका होगा. सो दिस पेंटिंग्स टेल यू अ लॉट अबाउट उस पीरियड में उस टाइम में उनका लाइफस्टाइल कैसा था. शिकार करते थे. यहाँ पे यू कैन आल्सो सी इफ यू सी दिस एंड दिस, तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो कुत्ता है ये किसी को शिकार करने के लिए हेल्प हो रहा है. दिस इज पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग दिस इज एग्जैक्टली ट्रू बट दिस इज पॉसिबल. व्हाट अबाउट दिस वन? कुकिंग वेसल के आसपास बैठे. Here, okay, so we can also see a little bit of cooking. Yeah, cooking is also there. Correct. Yes. Okay. Let's have some. Let's have a look at a little bit more paintings. तो ये भी है. I think it's a cave painting. अच्छा, this is something else. Okay. What does this tell you? So you can see maybe a little one or two birds are there. Correct? जो शाहमृग होता है तुम्हारा ostrich. It looks something like this to me. और फिर this might seem कि ये उसको शिकार कर रहा है. So most of the cave paintings वो जो है वो तुम्हारे शिकार कर रहे हैं. Now let's have a look at this. ये it's not exactly a cave painting, it's a artwork. But what else can you see here? You can see कि कोई शिकार कर रहा है. अभी ये सीन होगा तो you can definitely tell कि वहाँ पे आग जो है फायर का इन्वेंशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका होगा. You can see a lot of families happening here and there. यहाँ पे फूड है, यहाँ पे कोई पानी पी रहा है. So you can see कि यहाँ पे पॉटरी का इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका था. So these are the things that you have to understand from cave paintings. अगर हम थोड़ा और आगे की cave paintings देखते हैं या फिर if you see मुगल आर्ट, let's have some मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स जो होते हैं. मिनिएचर पेंटिंग्स मतलब वो बहुत ही छोटे हुआ करते हैं. सो इफ यू सी दिस वन, इसमें से हमें क्या पता चलता है कि देयर वेर अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स यूज्ड. करेक्ट? उनका गैलरी का जाली फैक्टर दिखाया गया है, यहाँ पे निश वगैरह दिखाया गया है. द आर्ट एंड कल्चर इज डेवलप्ड हियर. सो इन तरह की चीजों से जब तुम पुराने आर्टवर्क को देखते हो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उनका जो आर्ट है, उनका जो कल्चर है वो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है. ओके, ऑलराइट. Third and the final concept. So first concept is we use art to express what is happening around us or what is happening within us. Second, हमने cave paintings का example देखा कि how any type of artwork represent what is the social structure around us or what is happening around us. Correct? Third and the most important thing, Voyager 1 or Voyager. This is one of my favorite stories and it's such a timeless story. Okay. Voyager 1 और Voyager 2 ये दो स्पेसक्राफ्ट्स 1968 में, if I'm not wrong, लॉन्च किए थे उन्होंने, साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्ट ने. उनका नाम भी मैं बताता हूँ. देयर इज अ पोएम आल्सो दैट आई वांट टू रीड इट टू यू. तो उनका एक फंडा ये था कि व्हाट विल हैपन कि वो जो दोनों जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं वो तुम्हारे पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर काटेंगे. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम मे बी अर्थ, then it will go to Mars, then it will go to Jupiter, etc. करके. एंड वो जो है वो कहीं ना कहीं पे स्पेस में हर्डल आउट हो जाएंगे कि वो आगे they'll just go on their own. उनका कुछ डायरेक्शन नहीं रहेगा. वो
they will pick up the speed from planets and they will go on their own, correct? आज के मोमेंट पे उस वो जो स्पेस क्राफ्ट है वोयाजर उसको कहा जाता है, वोयाजर 1 एंड वोयाजर 2। वोयाजर 2 जो है उसका स्पीड जो है आज के मोमेंट पे वो 1 सेकंड में कुछ तो भी 2.7 किलोमीटर के आसपास है, 1 सेकंड में इट इज ट्रैवलिंग एट दैट स्पीड। उसमें उसका एक फंडा क्या था, ओनली वन फंड, 2-3 ऑप्शंस वर देयर। पहला फंडा ये था कि they wanted to see the solar system from a very close point of view, हर प्लैनेट को उनको देखना था एक पर्टिकुलर तरह से पास से कि वो कैसा है, so that they could study. Second was they wanted to see कि outer space में क्या है, because you have solar system, correct? solar system का एक बबल है, उसके अगर तुम बाहर जाते हो तो you have lot of harmful radiations are there, तो वहाँ पे जाने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है वो देखने के लिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कार्ल सेगन करके साइंटिस्ट है, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था एक प्रोजेक्ट। उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे वर डूइंग इज उनका ये था कि अगर अर्थ को कुछ हो जाता है, इफ देयर इज एस्ट्रॉइड कम्स और सोलर सिस्टम पूरा फट जाता है और इफ समथिंग हैपेंस, देयर वुड बी नो प्रूफ ऑफ अस दैट वी एवर एग्जिस्टेड। अगर कोई मान लो एलियन सिविलाइजेशन है, मान लो आज अर्थ का पूरा खात्मा हो जाता है, सो क्या प्रूफ है कि हम जिंदा रहेंगे? देयर इज नो प्रूफ एट ऑल। अगर पूरी अर्थ ही तुम्हारी टुकड़े टुकड़े हो गई, सो देयर इज नो प्रूफ एट ऑल इन द होल यूनिवर्स, राइट? तो व्हाट ही डिड, ही डिजाइन्ड अ क्लॉक, जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। उसमें दो चीजें थी। पहला वाज कि अगर वो किसी को मिल जाता है, इफ समबडी इज इंटेलिजेंट इनफ टू फिगर आउट कि वो क्या है, देयर वाज अ वे कि तुम कहाँ तक, मतलब हाउ कैन यू रीच अर्थ, नंबर 1। नंबर 2, somebody has to switch off their mic को आवाज होती है। उनका एक फंडा ये भी था कि इवन इफ somebody is not able to figure out कि हम तक कहाँ कैसे पहुंचना है, और मे बी वो 10,000 15,000 20,000 साल बाद किसी को मिलेगा, तो एटलीस्ट they will figure out कि yes, somebody at some point of time in the universe existed, और अभी हमारे लिए like we don't know any other civilization exists, so it is our duty to put out in the universe which is not on earth to say that we existed. This is the exactly same sentiment जो हमने वो हाथ वाला पेंटिंग था ना, केव पेंटिंग, हाँ it is the same exact sentiment to express our idea that we exist, ठीक है? और उसमें उस पर्टिकुलर वो सीडी था, उस पर्टिकुलर सीडी में साउंड्स ऑफ अर्थ करके एक रिकॉर्डिंग है। जैसे ही तुम इफ सम लेट्स से इट लैंड्स समवेयर, ठीक है, तो उस पे ऐसा है कि देयर आर 30 सॉन्ग्स एंड 30 डिफरेंट साउंड्स ऑफ अर्थ। सो उसमें एक जो निक्सन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनका एक ये था साउंड क्लिप था कि बाबा this is our attempt to express to the universe that at some point of time we existed. Now I'm going to show you two basic things and then we are going to have a look at we are going to have a look at a very beautiful painting that will express how insignificant we are, and then we are going to talk about yeah. So what you see here is that disk. Okay, so यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारा सोलर सिस्टम है ओवरऑल, and these are the example of, these are the major neutron star that we see around the world, and अगर कोई स्मार्ट सिविलाइजेशन है तो वो इसमें से समझ सकता है कि अर्थ तक कैसे पहुंचना है। So this is what the messaging was there. Or there was this this is made from gold, by the way. This, and yeah, this was another painting जो Voyager के इस पे था।
So this tells the same thing, but this also explain कि as a species हम कैसे दिखते हैं. So this is how the thing is. ये हमारा sun हो गया. This is your first planet. This is your second planet. This is Earth. This is the trajectory of the Voyager spacecraft, correct? And this is the position of Earth according to major neutron stars in the sky. So अगर मान लो 10,000 साल बाद एज अ स्पीसीज हम खत्म भी हो जाते हैं, देयर विल बी ऑलवेज अ प्रूफ इन द यूनिवर्स फ्लोटिंग अराउंड दैट वी एग्जिस्टेड. अगर वो किसी को मिल जाता है, मान लो 10,000 50,000 साल बाद अगर हम खत्म हो जाते हैं, तो किसी को जब whenever somebody will figure out कि ये क्या है, then they might be able to figure out कि ये जो species थी वो कैसे दिखते थे. So this is the highest example or the most important example of visual communication according to me, कि ये जो चीज है ये 10,000 15,000 20,000 साल बाद भी वैलिड रहेगी. Okay, now I'm not going to discuss one thing only, but मैं एक चीज को I want you to read about something. एक पेल ब्लू डॉट करके कार्ल सेगन का पेंटिंग है, पोएम है, वो एक बार पढ़ो. मैं शायद लिंक भी शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ ग्रुप पे. वेरी हम्बलिंग पोएम है, वो एक बार पढ़ना कभी कोई टाइम मिलेगा. ओके, काफी प्रवचन हो गया. लेट्स कम टू द पॉइंट. व्हाट यू गोटा डू, यू हैव टू फिगर आउट कि आज के टाइम पे, टुडे, right, or whatever is the time that we are living in, you have to figure out, you have to pick one topic जो तुम्हें लगता है कि important है आज के टाइम पे. It can be our political system, it can be our social structure, it can be our I don't know, finances, it can be कि हम कितने अच्छे लोग थे, it can be कि हम कितने बुरे लोग थे. You can talk about celebration, we can talk about sacrifices, we can talk about science, we can talk about anything that you want. You can even talk about your own life itself. Okay, बस वो जो भी तुम करोगे, तुम्हें एक पोस्टर डिजाइन करना. It has to be a poster in the A4 size, correct? Because I want to limit the outcomes. So you have to design a poster जो 2500 साल बाद जब कोई देखेगा तो उसको समझना चाहिए कि 2500 साल पहले क्या हो रहा है. सर प्लीज रिपीट. यस मिस आपको सुनिए. व्हाट यू गोट टू डू. अच्छा, मी आई विल गो अदरवाइज. यू हैव टू डिजाइन अ पोस्टर फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द करंट टाइम्स. मतलब 4500 मध्ये, मतलब आज से 2500 साल बाद जो कोई मान लो हिस्टोरियन है, अगर वो समझना चाहता है कि 2020 में क्या हो रहा था, तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तुम उसको बताना चाहोगे. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay, I'll explain again. You have to create a poster, correct? जो आज का जो हमारा लाइफ है, आज का जो वर्ल्ड है, वो डिपिक्ट करता है. तुम ओवरऑल वर्ल्ड भी डिपिक्ट कर सकते हो, या फिर तुम कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक ले सकते हो. तुम पॉलिटिकल सिस्टम ले सकते हो, तुम सोशल सिस्टम ले सकते हो, तुम तुम्हारा खुद का दिन कैसा होता है ये ले सकते हो, तुम कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हो, तुम सेलिब्रेशंस के बारे में बात कर सकते हो, तुम क्रुएल्टी के बारे में बात कर सकते हो, तुम जिस चीज के बारे में चाहे उस चीज के बारे में बात कर सकते हो. बिकॉज पिकिंग द टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मुझे किस बारे में बात करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है. Right? So you have to figure out a topic. Ki what is happening? What is the most important thing that is happening today, right now? It's in itself. और ये जो पोस्टर है, ये तुम्हें डिलीवर, मतलब ये पोस्टर जो है, ये it should be helpful for a historian 2500 साल बाद जो आज का टाइम स्टडी करने का ये कर रहा है. Are you getting what I'm trying to say? Oh, yes. Let me explain. Yes. From another point of view. मान लो the year is 4520. Okay, I am a historian of that time. और मुझे पता करना है कि 2020 में एग्जैक्टली क्या हो रहा था दुनिया में. So I go and figure out and I see a poster designed by you. ठीक है, तो ऐसा क्या है जो तुम उसको बताना चाहोगे.
Is it easier to understand now? I guess. हो हो कळालं. Okay. In what form the submission has to be? First, obviously the poster A4 size में try करो कि sketch ना हो. I want to see कि तुम्हारा skill level कैसा है poster color में या water color में, anything would do. Wet colors होना चाहिए, number 1. Size होना चाहिए A4. Then obviously there has to be some write up कि तुमने क्या टॉपिक चूज किया है और वो क्यों चूज किया है, कि तुम्हारे हिसाब से जैसे what I would choose is the environmental degradation that we are doing, and I would try to explain ki why you need to take care of environment. This would be an important topic for me. It can be something different for you. तुम्हारे लिए ये भी हो सकता है कि how corona pandemic affected your lifestyle, how corona pandemic, और तुम ये भी बोल सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है. तुम इस बारे में बात कर सकते हो कि तुम्हारा लाइफ कैसे था उस टाइम पे, कि तुम्हारा दिन कैसा हुआ करता था. एनीथिंग इज ओके, बट टू राइट अप्स. वन, कि तुमने जो टॉपिक लिया वो क्या लिया है और क्यों लिया है, थिंग नंबर 1. एंड सेकेंडली, जो तुम पोस्टर बनाओगे उसका आर्ट वर्क क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, कि तुमने जो टॉपिक लिया है उसको कैसे, मतलब पोस्टर और टॉपिक इसके बीच में देयर हैज टू बी राइट अप कि तुमने जो दिखाया है वो क्यों दिखाया है, किस तरह से दिखाया है. क्लियर? Okay, let me give you another example, maybe a short example. A good idea to understand is Warli painting आता तुम्हारा? हो. Warli painting are the same thing. Warli painting tell us about their culture maybe 500-600 years ago. If you go, yes Mansi, I'll get back. If you look at Hampi जो है वो 400 साल पहले जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं आर्किटेक्चर के थ्रू. तुम अगर तुमने देखा होगा डायरी ऑफ एने फ्रैंक करके एक बहुत फेमस बुक है. इट टॉक्स अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्मॉल गर्ल एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. ओके, सो इट हैज टू बी अ पेंटिंग, इट कैन नॉट बी अ राइट अप. विजुअली एक्सप्रेस करना है, बिकॉज इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आज जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, शायद वो लैंग्वेज एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर जो पोस्टर तुम डिजाइन कर रहे हो वो किसी ह्यूमन के हाथ में ही ना पड़े, वो शायद किसी एलियन के हाथ में पड़ जाए, तो वो उसको कैसे समझे. तो एज मच विजुअल एज यू कैन डू एंड ट्राई टू बी टाइमलेस. अगर ये चीज ऐसे बंदे को समझाना है 2500 साल बाद, दैट्स अ इंपॉर्टेंट फैक्टर. 2500 साल बाद तो तुम किस विजुअल्स का यूज करोगे, तुम किस कलर्स का यूज करोगे, तुम कैसे उसको समझाओगे कि आज के टाइम पे हमारे साथ क्या हो रहा था. I just want to take 1-2 short minutes and then I'll take questions. Why this exercise is important? Because sensitivity करके एक चीज होता है क्रिएटिविटी में या डिजाइन में या आर्ट में, कि how sensitive are you to the world around you. It's a very sensitive, मतलब बहुत important factor है. If you are ignorant or if you are an apath, जो आजू बाजू में क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाता है, तो you are gonna have a problem being a good designer or a good architect. Okay, I'm just putting it here. Next session में I'm gonna work on that. Okay, got the exercise? Okay, sure. Okay. If there are any doubts, please feel free to contact me on my WhatsApp. Acha, questions. Mansi, you had a question, you said. नाही सर, माझ्याकडनं चुकून झालेलं. म्हणजे डाऊट नाही. ठीक. और सी ये जो एक्सरसाइज है ना, ये दिस इज अ वेरी ह्यूज एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी, कि ये तुम्हें इस बारे में सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, यू नो, कि मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आल्सो कम्स इनटू प्ले. आई मीन वी आर सेइंग कि कोरोना है, घर पे रहो, ये करो, वो करो, बट देयर हैज टू बी सम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीपल हु डोंट हैव होम, जिनके पास घर नहीं है, उनके बारे में क्या. आज हम सोशल डिस्टेंसिंग का बात कर रहे हैं इतना, जिनके पास, जो लोगों को रास्ते पे सुना पड़ रहा है, उनका क्या. वी आर सेफ एट अवर होम्स, करेक्ट. वी हैव, मतलब खाना आ रहा है, ये आ रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग.
what about the migrant laborers that are walking and dying on the roads? It is very important for you to have an understanding of the world around you. It's extremely important. Okay, sensitivity is today's topic, and visual communication is today's topic. In next topic, we are gonna combine visual communication and product design together. Okay, Maitreya, for you, I'm repeating again. Exercise. Figure out a topic that according to you is the most important topic in the world right now. Design a poster accordingly, जो 2500 साल बाद एक्सप्लेन करे कि आज का करंट सिचुएशन क्या है. ठीक है? Are you clear on this? I'm expecting you are clear on this. ठीक है, चलेगा. So the submissions are on. If you have any doubts, you can always ask me on my WhatsApp या group पे भी डाल दो. I'll record this and I'll put it on YouTube for your convenience. चलेगा? Yes. Okay. चलो. So I will see you on which day now? Friday. With the submission. Okay. काफी लोगों का submission नहीं आया, कर दो बाबा, कर दो. It's a very interesting exercise. Okay. चलेगा? Yes. Okay. Think अच्छे से थोड़ा शांत दिमाग से सोचो and then you start working on it. Alright? चलो. Okay. Bye bye. Yes. Take care.